Jamil and Maryam are siblings. They are at their home. Jamil is very hungry. He runs to the kitchen. In the kitchen, he looks at a cat. She was drinking milk. It was for them. He is always afraid of cats. Mariam is a brave girl. She is not afraid of anything. She chases it away. He praises Mariam for her courage. Mariam thanks him. Mariam thanks him. पढ़िए आप में से कोई. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A brave A girl. brave girl. Jamil and Jamil Maryam and are Maryam are siblings. Sir, They siblings. are at their home. Jamil is very hungry. He runs to the kitchen. In the kitchen, he looks at a cat. He looks. S को मत छोड़िए. He looks. He S ने looks आपका क्या at बिगाड़ा a है? cat. हम्म. She was drinking milk. It हम्म. was for them. He is always afraid of cats. Mariam is a brave girl. She is not afraid of anything. She chases it away. He praises Mariam for her Praises. courage. He praises. He praises. He praises Mariam for her courage. Mariam thanks him. The next. A brave girl. Jamil and Maryam are siblings. They are at their home. Jamil is very hungry. He runs to the kitchen. In the kitchen, he looks at a cat. She was drinking milk. It was for them. He is always afraid of cats. Maryam is afraid of cats. Maryam is a brave girl. She is not afraid of anything. She is it away. Chases He it away. Chases it away. chases it away. He praises Maryam for He praises. Maryam for her Courage. courage. Maryam thanks him. जी next. Bismillahirrahmanirrahim. A brave girl. Jamil and Maryam are siblings. They are at their home. Jamil is very hungry. He runs kitchen. In the kitchen, he to the kitchen. In the kitchen, he looks at a cat. She was drinking milk. It was for them. He is always afraid of cats. Mariam is a brave girl. She is not afraid of anything. She chases it away. He praises Mariam for her courage. Mariam thanks him. Thanks him. Sorry, Mariam thanks him. जी कोई और पढ़ो एक साथ कोई और. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil and Maryam are siblings. They are at their home. Jamil is very hungry. He runs to the kitchen. In the kitchen, he looks at a cat. She was drinking milk. It was for them. He is always afraid of cats. Mariam is a brave girl. She is not afraid of anything. She chases it away. He praises Mariam for her courage. Mariam thanks him. जी माशाल्लाह गुड. देखें तर्जुमा देख लेते हैं. आगे मैं एक और टेक्निक आपके सामने कल से इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इसके न्यू वर्ड्स लिख दूंगा. उसके बाद ये फाइल भेजूंगा. जमील एंड मरियम आर सिबलिंग्स. जमील और मरियम भाई बहन हैं. सिबलिंग्स भाई बहन. दे आर एट देयर होम. वो अपने घर में हैं. जमील इज वेरी हंग्री. जमील बहुत भूखा है. He runs to the kitchen. वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़ता है. In the kitchen he looks at a cat. बावर्ची खाने में
बिल्ली को देखता है। शी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रही थी। इट वॉज फॉर देम, दूध उनके लिए था, यानी जमील और मरियम के लिए था। ही इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कैट्स, वो हमेशा बिल्लियों से डरा हुआ रहता है। अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ रहना, अफ्रेड ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरा हुआ रहता है, ऑलवेज हमेशा, वो हमेशा बिल्लियों से डरा हुआ रहता है। मरियम इज अ ब्रेव गर्ल, मरियम एक बहादुर लड़की है। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी चीज से डरी हुई नहीं है, या वो किसी चीज से नहीं डरती। शी चेजेस इट अवे, वो उसका पीछा करती है। ही प्रेजेस मरियम फॉर हर करेज, वो यानी जमील प्रेजेस मरियम, मरियम की तारीफ करता है। प्रेज की मैं तारीफ करना, वो मरियम की तारीफ करता है फॉर हर करेज, उसकी हिम्मत की वजह से। हाँ, फॉर हर करेज, उस मरियम की हिम्मत को दाद देता है, भी कर सकते, वो मरियम की हिम्मत को दाद देता है। मरियम थैंक्स हिम, मरियम उसका शुक्रिया अदा करती है। अब आगे देखें लफ्ज प्रोफेशंस। प्रोफेशंस यानी पेशे। टीचर, उस्ताद, हेडमास्टर, पेशे जानते हैं? पेशे, पेशे जानते हैं आप लोग? पेशे यानी किसका क्या काम है, काम जो लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जी। तो प्रोफेशंस, टीचर, उस्ताद, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी, टीचर, उस्ताद, हेडमास्टर, सदर मुदर्रिस, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ऑथर, मुसन्निफ, राइटर, कलमकार, स्पीकर, खतीब, लेक्चरर, उस्ताद, लॉयर, वकील, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, मैनेजर, नाजिम, कारपेंटर, बढ़ई, बिल्डर, मेमार, फार्मर, किसान, बार्बर, नाई, प्लम्बर, नलसाज, कोबलर, मोची, पेंटर, नक्काश, पोस्टमैन, डाकिया, कुक, बावर्ची, बूचर, कसाब, स्वीपर, भंगी, गार्डनर, माली, कैशियर, खजांची, ज्वेलर, जौहरी। टीचर, हेडमास्टर, प्रोफेसर, ऑथर, राइटर, स्पीकर, लेक्चरर, लॉयर, जर्नलिस्ट, मैनेजर, कारपेंटर, बिल्डर, फार्मर, बार्बर, प्लम्बर, कोबलर, पेंटर, पोस्टमैन, कुक, बूचर, स्वीपर, गार्डनर, कैशियर, ज्वेलर। कोई पढ़े आप में से जरा इन वर्ड्स को? टीचर, हेडमास्टर, प्रोफेसर, ऑथर, 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 राइटर, स्पीकर, लेक्चरर, लॉयर, जर्नलिस्ट, मैनेजर, कारपेंटर, मैनेजर, मैनेजर, कारपेंटर, बिल्डर, फार्मर, बार्बर, प्लम्बर, कोबलर, पेंटर, पोस्टमैन, कुक, पोचर, बूचर, बूचर, स्वीपर, गार्डनर, कैशियर, ज्वेलरी। सर बूचर मतलब ज्वेलर। सर ये बूचर मतलब इसके और क्या मतलब वर्ड्स हो सकते हैं? कसाई, कसाई, अच्छा, कसाई। गोश्त की जो दुकान रखते हैं ना। अच्छा, वो कसाब, कसाब हाँ, लिखा है ना तुमने? हाँ, कसाब बोलते हैं उर्दू में उसको। इतनी मतलब ज्यादा डीपली उर्दू नहीं आ रही मुझे, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप पूछ सकते हैं उसका एग्जैक्ट
आप जिसको भी उर्दू समझ में ना आए आप कांटेक्ट कर लीजिए, पूछिए क्लास में भी, कोई मसला नहीं इस सिलसिले में। अच्छा, जो मुतबादिल उर्दू का रहता है, हम उर्दू हमारी जबान है इसलिए हम लिख नहीं देते बिल्कुल सही हैं। बात बता दिया, एकदम क्या एकदम डीपली जी जी, नहीं आता। बेहतर है, जज़ाकल्लाह। जी, और एक साहब कोई और पढ़ो। प्रोफेशंस, हम्म टीचर, हम्म हेडमास्टर, हम्म प्रोफेसर, हम्म ऑथर, हम्म राइटर, हम्म स्पीकर, हम्म लेक्चरर, हम्म लॉयर, हम्म जर्नलिस्ट, हम्म मैनेजर, हम्म कारपेंटर, हम्म बिल्डर, हम्म फार्मर, हम्म बार्बर, हम्म प्लम्बर, हम्म cobbler, हम्म पेंटर, पोस्टमैन, हम्म कुक, बूचर, हम्म स्वीपर, हम्म गार्डनर, हम्म कैशियर, हम्म ज्वेलर। ओके, गुड, माशाल्लाह। अब ये देखिए पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को जबानी याद करना है, यानी ज़मीर Sir, शख्सी। my one question. यस यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, Sir, पूछिए। जी जी, हम्म मैं मालूम हम्म। करना चाह रहा था ये स्कॉलर और लेक्चरर में क्या कोई डिफरेंट है या सेम सेम नहीं है? लेक्चरर उस्ताद को बोलते हैं, एक स्कॉलर एक स्कॉलर क्या है, यानी आलिम को स्कॉलर बोलते हैं, आलिम को उस्ताद होना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, आलिम आप भी स्कॉलर हैं। अब ओके। उससे आगे एक रिसर्च लग जाता है, रिसर्च स्कॉलर यानी बाहिस, पीएचडी स्कॉलर लग जाता है। जी तो जी, स्कॉलर एक ऐसा वर्ड है, आगे पीछे उसके वर्ड लगते लगते रहते हैं। लेक्चरर जैसे मुदर्रिस बोलते हैं, उसके लिए लेक्चरर, मुदर्रिस और उस्ताद के लिए वर्ड लेक्चरर। टीचर और लेक्चरर यानी कॉमन है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपने ये पहली लाइन पढ़ी थी, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। आज हम आपको बताएंगे इससे पर्सनल प्रोनाउंस की तीन किस्में हैं, एक नॉमिनेटिव यानी तीन हालतें हैं इसकी। एक नॉमिनेटिव हालत होती है, एक जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है, एक पॉसेसिव हालत होती है। नॉमिनेटिव यानी फाइली हालत, जो सब्जेक्ट बन करके आ जाता है प्रोनाउन, उसको नॉमिनेटिव केस में बोलते हैं अंग्रेजी में। और जहां पे ये मफूली हालत में, जैसे गिव मी, मुझको दीजिए, तो उसको म्यू क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। पॉसेसिव यानी जिसमें कब्जे को बतलाना होता है, दिस इज माई बुक, तो माई क्या है, ये पॉसेसिव में है। पॉसेसिव, हर प्रोनाउन पॉसेसिव की दो शक्लें रखता है, नीचे लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी शक्ल लाइन में लिखी हुई है, जैसे माई की। अब आप देखें, आई सबका तर्जुमा लिखा हुआ है, आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वो मुजक्कर के लिए, और शी वो फीमेल मोअन्नस के लिए, दे वो सब जमा गायब, और इट ये गैर ज़मील उक़ूल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट का जानदार हो सकती चीज, जानदार हो, गैर जानदार हो, लेकिन गैर ज़मील उक़ूल हो, यानी जिसके, यानी इंसान से, आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विल और वाइज और विजडम ये सब कुछ अदा किया। तो जिन जो बोल नहीं सकते, यानी जो इंसानों के अलावा, उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई का बेजान चीज के लिए भी बे, है। बेजान नहीं नहीं, जानदार चीज भी है, जैसे कैट के लिए शी, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जानदार चीज है। तो जानदार निकाल करके गैर ज़वील उक़ूल, जिनके अक्लें नहीं होती, जो इंसान होते हैं, जानदार चीज, जानवरों के लिए ईट का इस्तेमाल करते हैं। दे कॉमन है, दे ये कॉमन है, दे का इस्तेमाल इंसानों के लिए भी और जानवरों के भी लिए होता है। तो ईट का बेजान चीज के लिए और जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल है। आई का ऑब्जेक्टिव यानी मफूली हालत मी आती है, वी की अस, और यू की यू ही रहता है, लेकिन जुमले में जो उसकी जगह है उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये किस हालत में है। जैसे यू राइट वेल, यू राइट वेल तुम अच्छा लिखते हो, यू रीड वेल तुम अच्छा पढ़ते हो। इसी तरह हम गिव, ही गेव यू अ बुक, तो यहाँ पे जो प्लेस है यू की, उससे हम समझ जाएंगे जुमले में जगह क्या है।
अगर वो वर्ब के बाद यानी फेल के बाद आ जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और अगर वर्ब से पहले तो नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव यानी हालत फाइल ही में होगा। मी मुझको, अस हमको, यू तुमको, तो यू का यू और ही का हिम उसको, गिव हिम, बीट हिम, आस्क हिम, और हर उसको, ये मोनस के लिए, देम उनको यानी उन सब को, और इट उसको। अब इनका पजेसिव यानी जिससे कब्जा बतलाया जाता है वो प्रोनाउन के, उसकी शक्ल क्या होगी? आई की माई बुक, वी की अवर बुक, यू की योर बुक। एग्जाम्पल के साथ सिंपल बोल रहा है, नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। यू का यूर और ही का हिज पेन, हिज बुक, हिज लैपटॉप, हिज मोबाइल, और शी का हर आता है। हर सेम है, हम सिर्फ जो है जुमले में जगह उसकी क्या उससे पहचानेंगे कि इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या है। हर बुक, हर ड्रेस, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है जो एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दे, देम, देयर आता है उनका पॉजिटिव फॉर्म, उनका यानी उन सब का। देयर होम, उन सब का घर। देयर बुक्स, उन सब की किताबें। और इट का इट्स आता है, ये तो एक पहली हालत है, यानी तमाम प्रोनाउंस की पॉजिटिव फॉर्म इस हालत में पहली हालत। दूसरी शक्ल इसकी ये भी होती है, तर्जमा सेम होगा, जो हमने लिखा माना उसका वही होगा। आई का माइन, दूसरी शक्ल माइन है। वी की आवर्स है, यू की यूअर्स है, हिज की हिज ही है। अगर जो यानी पॉजिटिव की दूसरी शक्ल देखे, हिज की, और हर की हर से, देयर की देयर से, और इट की इट से। जुमले के इस्तेमाल में, जब जुमले में इसका इस्तेमाल करेंगे तब हम इसको समझेंगे। अभी आपका काम सिर्फ इतना है कि पर्सनल प्रोनाउंस को याद करें, और पर्सनल प्रोनाउंस की कितनी शक्लें हैं वो क्या क्या है वो आप याद कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि उनका इस्तेमाल कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, आज का सबक आपका बस इतना ही। आगे कोई आपको सवाल है? इससे टाइम भी हो रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए सबक से मुताल्लिक। Yes, sir. My two question. यस सर एक वो आप बोले थे कि डिक्शनरी का मैं लिंक सेंड कर दूंगा। या लिंक मैं अभी फौरी भेजता हूँ। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। जी और बोलिए।